Good morning, this is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to teach you fixed preposition dealing with finding errors, and thanks for those who have clicked my channel. तो आइए देखते हैं कि there are sentences and there are 4 options, and in which one of them is incorrect. You have to pick out which number is incorrect, and also we shall be doing correction as well. तो उसमें से अब स्टडी करना है, चूँकि ये फाइंडिंग एरर्स connected with prepositions है, तो our concern is only with preposition and not grammatical or tenses errors. Though she has aptitude in mathematics, I won't allow her to take it up as a subject of study for the master's degree, because I know the labor involved will tell upon her health. तो आइए देखते हैं कि प्रीपोजिशन कहाँ पे है. हाँ, तो हैज़ एप्टीट्यूड इन है, ये ठीक है. ठीक तो नहीं. आई वोंट अलाउ हर टू टेक इट अप एज अ सब्जेक्ट फॉर द मास्टर्स डिग्री, ये भी ठीक है. I know the labor involved will tell upon her health, ये भी ठीक है. तो mistake is in this one. Section 2. She has an aptitude for mathematics. It should be for mathematics. तो answer will be section 2. In mathematics माने mathematics में, और aptitude मतलब काबिलियत फॉर मैथमेटिक्स के लिए. तो इन इज इनकरेक्ट. आइए सेकेंड वन चलते हैं. आई वॉन्ट टू एक्सचेंज माई मारुति कार फ्रॉम अ सेंट्रो. सो प्रीपोजिशन ये है, एक्सचेंज माई मारुति फ्रॉम नहीं होता है, फॉर अ सेंट्रो होता है. सुनने में फ्रॉम और फॉर दोनों से होता है, बट फ्रॉम इज इनकरेक्ट एंड वो फॉर होता है. ये इसका है, सॉरी, मारुति फॉर अ सेंट्रो. अरे थर्ड वन देखते हैं. दैट ब्रूटस हु वॉज हिज ट्रस्टेड फ्रेंड हैड अटैक्ड ऑन हिम caused heartbreak to Julius Caesar. तो heartbreak to Julius Caesar तो correct है. Who was his trusted friend attacked on him, ये incorrect है. Attack transitive verb है, and this does not take any preposition. So without preposition रहेगा इसमें. question number 2 answer है, and there won't be any preposition with attacked him. जैसे he entered the room, entered in the room नहीं होता है. he reached the station, reached to the station नहीं होता है. visited to नहीं होता है, visited his place होता है. these are some words in which preposition is not added. और verb followed by जो preposition होते हैं वो phrasal verb कहलाते हैं. Anyway, आइए next one. The government is hoping to raise the electricity. ये to raise preposition नहीं है, ये to infinitive है. confuse मत कीजिएगा to preposition और to infinitive से. To raise the electricity generated from nuclear plants, ये भी preposition है. nuclear plants again ये preposition है. from 25% since, ये गलत है. since यूज होता है, आइए यहाँ समझाते हैं, बहुत important होता है. since और for. since is used for beginning of time. Since 2010 I have been living in
दिल्ली। तो सिंस 2010 मतलब 10 इयर्स हो गया। और अगर फॉर लिखेंगे तो हमको लिखना होगा आई हैव लिविंग फॉर 10 इयर्स। यहाँ पे लिखना होगा सिंस 2010, बट यहाँ लिखना होगा फॉर 10 years. This is span of time. This is beginning of time. ये since और for होता है, बट यहाँ since और for का डिस्कशन नहीं है। since 2020 मतलब 2020 से, जबकि है कि till 2020 तक till और until एक ही चीज़ होता है। यहाँ पे हमने ये आ गया तो इसलिए दैट्स व्हाई आई डिस्कस दिस सिंस और फॉर। और इसमें नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड। आई हैव बीन लिविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस विद सिंस एंड फॉर बोथ। तो नेक्स्ट वन आइए। द एक्टर वॉज फोटोग्राफ्ड while dining at a 5-star रेस्टोरेंट। तो आप सोचिएगा इन रेस्टोरेंट होता है। एंड वॉज क्वाइट एनॉयड ऑन इट, दो प्रीपोजिशन यहाँ यूज हुआ है। अब यहाँ एट और इन में मैं वीडियो पहले ही दे चुका हूँ। इन का मतलब होता है में, किसी चीज़ सराउंडेड है उसके अंदर आप हैं, और एट का मतलब होता है इसके इर्द गिर्द हैं आप, अंदर में नहीं है, उसके आसपास हैं, आसपास। दैट इज द डिफरेंस। तो यहाँ एट इज करेक्ट, लेकिन एनॉयड ऑन इट उस पर नहीं होता है। आई वॉज एंग्री ऑन हिम, दैट इज इनकरेक्ट। आई वॉज एंग्री विथ हिम, ऑन नहीं होता है। उसी तरीके से ऑन यहाँ नहीं होगा। आई वॉज एनॉयड विथ भी नहीं होगा, एट इट, एनॉयड एट, सरप्राइज्ड एट, सरप्राइज्ड एट। तो ये नेक्स्ट थोड़ा मिटा दूं मैं कुछ। Sorry. The passengers were asked to carefully get down off the train. तो यहाँ तो off है। Off is used for separation. OFF is used for separation. जैसे took off, the plane took off, switch off, hats off, fell off। तो आप यहाँ पर सोचेंगे कि गेट डाउन तो है ही, लेकिन ये डिफरेंस है। ऑफ इज इनकरेक्ट, इसके जगह होना चाहिए फ्रॉम। ऐसे फेल ऑफ द बाइसिकल ठीक है, फेल डाउन फ्रॉम द बाइसिकल अच्छी नहीं, वहाँ सेपरेशन होता है। हैट्स ऑफ, हैट हटा दिए। द प्लेन टुक ऑफ, अर्थ से सेपरेशन होता है, दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड। आइए नेक्स्ट वन, 7th वन। माई स्कूटर इज बीइंग सर्विस्ड, सो आई एम गोइंग टू द ऑफिस। देखो गोइंग टू ये प्रीपोजिशन, बाई वॉक। आप सोचेंगे बाई वॉक तो ठीक है, लेकिन ऐसा बोला नहीं जाता है, बोला जाता है ऑन फुट। सुनने में तो अजीब, फुट के ऊपर हम चलते हैं क्या, बट इंग्लिश थोड़ा सा कभी कभी उटपटांग होता है। बाई वॉक नहीं होता है, ऑन फुट होता है, ऑन फुट, बाई नहीं होगा। दिस इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट वन, अप्रूव
Probe means inquiry. Has been ordered to look in. Preposition है. The accident that occurred at the dockyard. वही डॉकयार्ड हम बताए ना, एट एक जगह पॉइंट नहीं है, उसके अंदर नहीं है, उसके इर्द गिर्द, और बड़ा स्पेस है, छोटा स्पेस नहीं है, इसलिए ये एट तो ठीक है. अब आइए, लुक इन द एक्सीडेंट नहीं होता है, उसके अंदर नहीं है, ये डीप इनटू द एक्सीडेंट, द मैटर है, इसमें इनटू होता है. लुक इनटू माय मैटर. और इनटू इज यूज्ड फॉर चेंज ऑफ मीडियम आल्सो. चेंज ऑफ मीडियम जो होता है ना, जैसे रेयर मीडिया से डेंसर मीडिया. द ट्रेन रश्ड इनटू द टनल. ही प्लंज्ड, ही डाइव्ड इनटू द वाटर. ये वाटर है, तो इनटू चेंज ऑफ मीडियम होता है, उसमें भी इनटू इज यूज्ड. चेंज ऑफ मीडियम. तो आइए नेक्स्ट वन. सिंस हिज फादर वॉज गेटिंग ओल्ड. अब यहाँ सिंस माने बिकॉज होता है, सिंस वो सिंस नहीं है, वो वाला सिंस जो बताए थे, इट्स नॉट दैट सिंस. सिंस इज यूज, सिंस इज मीन्स बिकॉज. फॉर, सिंस भी यूज होता है, बिकॉज भी होता है, फॉर भी होता है, एज भी होता है, सब रीजन के लिए होता है. द सन बिगैन टू गेट वरीड. टू गेट यहाँ टू इन्फिनेटिव. एज ही हैज नॉट लर्नड any trade. To make, ये to infinitive है. This is also to infinitive, ये भी to infinitive. A living on himself नहीं होगा. Living on himself नहीं, मुझ पर नहीं है. For himself है, खुद के लिए. तो ये on is incorrect, correct answer is for himself. तो ये प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन सब बंधा हुआ है. इसको बहुत सारे प्रीपोजिशंस हम ऐसे भी देंगे, जैसे कुछ कुछ ज़बान पे ही आना चाहिए. रेस्ट्रेंड फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, फेमिलियर विथ, एडिक्टेड टू, ये सब याद रखना पड़ेगा, याद करना पड़ता है कुछ कुछ. और तो अगर उम्मीद है पसंद आया होगा मेरा एक्सप्लेनेशन. अगर लाइक करते हैं तो शेयर कीजिए among your friends and please subscribe to my channel so that I may be provoked. और प्रोत्साहित कीजिए हमें कि और भी वीडियो आपको हम देते रहें और you might be benefited. Thank you. Have a nice day.